वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने सनती तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। ताडेपल्ली कैंप ऑफिस में वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने महकमे इंडस्ट्री के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान सनतों के लिए अलर्ट करदा इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया। बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करने वाले MSME पर खुसूसी तवज्जो देने का भी वजीर आला ने ओहदेदारों को मशवरा दिया। टीचर्स अहलियती टेस्ट टीट को ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन मुनक्किद करने का मुतालबा जारी है। तलबा तंजीम DYFI ने टीट के साथ साथ DSC मुनक्किद करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। विजयवाड़ा में DYFI के लीडरों ने कहा कि तकरीबन 4 लाख से जायद उम्मीदवार DSC इम्तहान के मुंतजर हैं। पिछले कई सालों से DSC न होने से ट्रेंड टीचर्स बेरोजगार हो गए हैं। సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు టెట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। డిఎస్సి విడుదల చేయాలని చెప్పేసి గత 3 సంవత్సరాలుగా డివైఎఫ్ఐగా మేము పోరాడుతూ ఉన్నాం। ఇప్పటికీ 4 లక్షల మంది బీఈడి చదివి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు, బీఈడి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు 4 లక్షల మంది బయటకు వచ్చారని చెప్పేసి మనకి తెలుస్తూ ఉంది। అయితే ఏదైతే ఖాళీలు టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయో 20,000 పోస్టులు వాటిని భర్తీ చేయమని చెప్పేసి డిఎస్సి విడుదల చేయమని చెప్పేసి మన డివైఎఫ్ఐగా అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాడుతూ ఉన్న పరిధిలో ఇప్పుడు టెట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। టెట్ నోటిఫికేషన్ CBT కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్గా జరుపుతామని చెప్పేసి మనకి ఉంది। ఆఫ్లైన్లో పెడితేనే మాకు ఎక్కువగా లబ్ధి చేకూరుతుందని చెప్పేసి టెట్ అభ్యర్థులు కోరుతా ఉన్న పరిస్థితి। దీన్ని ప్రభుత్వం గమనంలో పెట్టుకొని ఆఫ్లైన్ విధానాన్ని महकमे रेलवे ने स्टार्टअप के तौर पर इख्तिराई स्कीम को शुरू किया है ताकि रेलवे की इंतजामी सलाहियत और हिफाजत को बढ़ाया जा सके, जिसके लिए मुल्क की कंपनियों की जानिब से तैयार करदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन के DRM शिवेंद्र मोहन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के रेल भवन में रेलवे के लिए स्टार्टअप इक़दाम का आगाज किया है। Recently issued an innovation policy in which private entrepreneurs, innovators, startups, MSMEs, they can come to railways, they can address the problems of the railways to enable development of new technology, introduction of new ideas. Railway Minister of Railways, Honorable Minister of Railways had launched yesterday only startup portal, innovation startup portal. It is available on the Indian Railways website, in which some problem statements have been also uploaded. Railway Board had called from different railways, zones, divisions. They had asked us, you provide what problems you are facing, what improvements you want, where technology innovation can help. So more than 100 problem statements were received, and out of that, in first phase, they have selected 11 problem statements, including detection of rail fracture and मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का गुंटूर की मुस्लिम तंजीमों ने मुतालबा किया है। गुंटूर के अंजुमन शादी खाने में मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुस्लिम लीडरों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें YCP के अलावा कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी के लीडर मस्तान वली, YCP की जानिब से रुकन असम्बली मुस्तफ़ा और तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से नज़ीर अहमद ने हिस्सा लिया। तमाम लीडरों ने मुतहिदा तौर पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। ఎక్కడో ఏదో మాట్లాడాడు హిందూ మతం గురించి అని చెప్పి మేమేదో దాన్ని సపోర్ట్ చేయట్లా। వెంటనే నువ్వు అరెస్ట్ చేశావు, బెయిల్ మీద వస్తే మళ్ళా అరెస్ట్ చేశావు। నుపున్ శర్మ అనేటటువంటి RSS వాది, ఇవాళ RSS వాదిగా ఉన్నటువంటి జాతి వ్యతిరేకి ఈ కన్నలు చేసిన తర్వాత అరెస్ట్ చేయకపోవడం దురదృష్టకరమని వెంటనే నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశ పాలకుడైతే వెంటనే స్పందించి నుపున్ శర్మని, నవీన్ జిండల్ని అరెస్ట్ చేయాలని భారతదేశంలో భాగమైనటువంటి ముస్లింల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నాయి. చెప్పినటువంటి వాళ్ళను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి
గత 15 రోజుల నుంచి యావత్తు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి లౌకికవాదులందరూ కూడా అనేక రకాలుగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అయినా కూడా భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఎవరైతే అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ప్రతి నిత్యం కూడా మత కల్లోలాలను సృష్టించేటువంటి విధంగా ఏదో ఒక సందర్భం वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से करनूल के धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और योगी आदित्यनाथ हुकूमत से जावेद मोहम्मद SRC मूवमेंट की कारकुन आफरीन फातिमा को फौरी तौर पर गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया। एहतजाजी PFI के कारकुनों ने यूपी में चल रहे बिल्डोजर के रिवाज के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। PFI के कारकुनों ने घरों से महरूम मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया है। इनका राज्य बुलडोजर राज्य आ गया है। ये हिंदुस्तान के हुकूमत के हमारे कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत जुल्म कर रहे हैं। और बीजेपी हुकूमत जहाँ भी है वहाँ पे क्या है मुसलमानों पर टारगेट लगा के और उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आज हम यहाँ पे उसके खिलाफ वर्जी करके हम क्या है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकायदा बीजेपी हुकूमत के खिलाफ भी और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तान बहुत बेहतरीन मुल्क है, इस मुल्क का जो कानून बेहतरीन कानून है, इस कानून के खिलाफ और जो है क्या है बीजेपी की हुकूमत अब गुंडाइज्म के में उतर गई है। और ये आज हम सब मिलकर उसके खिलाफ इसके खिलाफ हम क्या है आवाज़ नहीं उठाएंगे और बहुत से लोगों पर जुल्म करते जाएंगे। आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से नंदियाल लाइब्रेरी में शुरू करदा रीडिंग प्रोग्राम का आज इख्तिताम अमल में आया। इख्तितामी तकरीब में DEO के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तलबा में किताबों के मुताले का शौक पैदा करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका तलबा ने भरपूर इस्तिफादा किया। इख्तितामी तकरीब के मौके पर रीडिंग प्रोग्राम में शरीक तलबा में असनादात और इनामात तकसीम किए गए। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने कहा कि तलबा को तालीम से जोड़ने के लिए मुस्तकबिल में भी इसी तरह के कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। वहीं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर बरहमी का इजहार करते हुए करनूल में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला सदर सुधाकर बाबू की क़यादत में शहर में रैली निकाली गई। इस दौरान मुखालिफ बीजेपी नारेबाजी की गई। सुधाकर बाबू ने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा होकर बीजेपी ने जांच एजेंसी का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जिला नेलोर के हल्का असेंबली आत्माकौर में ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। YCP के अक़लियती लीडरों की जानिब से आत्माकौर में जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे में नायब वज़ीर-ए-आला अमजद बादशाह के अलावा हफीज़ खान और दीगर ने शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर अक़लियतों से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। रुकन असेंबली हफीज़ खान ने आंजहानी गौतम रेड्डी के फर्जंद को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अवाम से अपील की है। वादा किया था हमारे इमाम और मौजन के लिए जो गुज़िश्ता हुकूमत में 5,000 3,000 रुपए दिए जाते थे, मगर आज जो वादा हमने किया था वो वादा हमने पूरा किया। आज हमारे इमाम साहब को 5,000 से 10,000 रुपये हम तनख्वाह दे रहे हैं और हमारे मौजन को 3,000 से 5,000 रुपये, तकरीबन दो मिला के हर मसाजिद को 15,000 रुपये हमारी हुकूमत जगनमोहन रेड्डी साहब की हुकूमत दे रही है। जगनमोहन रेड्डी साहब आप लोगों के साथ घर के पट्टे दे रहे, आपके बच्चों के स्कूलों के फीसा दे रहे, कॉलेज के फीसा दे रहे, मेरे माँ बहनों को जो है घर में बैठ के कुछ काम कर ले सो वैसा जो है व्यापार करे सो वैसा कोई कारोबार करे सो वैसा जो है वो लोगों को पदुपुर संघाल के जरिए से पैसे दे रहे, चयुता के जरिए पैसे दे रहे। मेरे बड़े बुजुर्गों को जिन लोगों को खाने को तकलीफ है, दवाइयों को तकलीफ है, उनको पेंशन घर जिला करनूल में महकमे आयुष की जानिब से योगा से मुतल्लिक शोर बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली में महकमे सेहत के ओहदेदारों के अलावा हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। करनूल के सरकारी अस्पताल से रैली का आगाज हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त के दौरान अवाम को योगा से मुतल्लिक जानकारी दी गई। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश जरूरी है। 21 जून को आलमी यौम योगा मुनक्किद होने वाला है। जो जून के 21 तारीख को मनाया जा रहा है, इसके ज़िमन में हम लोगों ने एक बड़ी रैली का एहतिमाम किया गया और इस रैली में डॉक्टर स्वर्णलता, डॉक्टर उमा महेश्वरी और मैं और हमारे स्टाफ ने इसमें हिस्सा लिया।
इस योगा डे के मद्देनज़र जो 21 जून को इस साल मनाया जा रहा है, इसके ज़िम्मन में जो है ज़िला के लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 जो है ख़ास सेंटर्स को सेलेक्ट करके वहाँ पे जो है योगा के जो है कॉम्पिटिशन्स के कर्नूल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नई इमारत की तामीर के लिए टीजी भरत ने 50 लाख रुपए के अतिये का ऐलान किया है। टीजीवी कंपनी के चेयरमैन टीजी भरत ने फिलवक्त 26 लाख रुपए का चेक एसोसिएशन के जिम्मेदारों के हवाले किया। बकिया रकम बहुत जल्द देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मुआशरे की खिदमत के लिए टीजीवी हमेशा तैयार है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने टीजी वेंकटेश और टीजी भरत का शुक्रिया अदा किया। वहीं जिला करनूल के नंदियाल से ताल्लुक रखने वाले आरटीए एजेंट करीमुल्ला के अहल खाना को माली इमदाद फराहम की गई है। तेलुगु देशम पार्टी के रियासती माइनॉरिटी सदर मौलाना मुश्ताक अहमद की जानिब से माली इमदाद फराहम की गई। उन्होंने करीमुल्ला के घर पहुंचकर अहल खाना से मुलाकात करते हुए माली इमदाद हवाले की। मुश्ताक अहमद ने कहा कि आला ओहदेदारों की हरासानी से तंग आकर ही करीमुल्ला ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने इस वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।